Hello everyone. Today we will discuss next topic of foreign exchange rate, balance of payment. We already discussed about the foreign exchange rate. Now we will discuss balance of payment. Balance of payment. It is a systematic record of all economic transaction of a country with other countries during a fiscal year. Means कि एक वर्ष के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक देश से दूसरे देश के साथ जितनी भी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैपिटल लेन देन या गिफ्ट्स हैं, सभी जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं उसके एक विवरण को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of all economic transaction between resident of a country and rest of the country during a given period of time, in which include both visible and invisible item. Visible item is that item which can be touched, seen and move one place to the another place. Invisible item means only service, tangible and intangible. We already read in the commerce class. To include both visible and invisible items, it includes unilateral transfer. Unilateral means one side transaction, only receive, like donation, gift, grants from rest of the world, and we are giving also gift and donation grant to other countries. It include capital transfers also. Capital transfers means long-term and short-term assets and liabilities of a country with other countries is known as a capital transfer. It is always in balance receipt side in made to be equal to payment side in accounting sense. In accounting sense, balance of payment always remain positive, equal, because whenever current account face the problem of deficit, its losses cover from capital transfer. So in accounting sense, balance of payment remain balance. Hence balance of payment represent a better picture of a country's economic transaction with the rest of the world than balance of trade. Balance of trade is a part of balance of payment. Let's start balance of trade. Balance of trade, it is a difference between the money value of export and import of goods and service. Balance of trade is a difference between money value export and import of material goods, यानी कि only visible goods. It records all goods. It does not record transaction of capital nature. जो भी capital natures की goods होंगी, एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड गुड्स होंगी, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता. ओनली रूटीन्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है. ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं. इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड is a narrow sense, balance of payment is a wider sense. Balance of payment always remain balance in accounting sense, but balance of trade may be balance, may be unbalance. इसका डिफरेंस करना ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम क्या है, आस्क इन एग्ज़ाम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उसके अंदर किन किन आइटम्स को स्टडी किया जाता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट, इट इज़ ए समरी ऑफ ए नेशंस टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अंडरटेकन और इंटरनेशनल अकाउंट. उन्होंने ऑलरेडी रीड कर लिया है कि ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री विद अदर कंट्री. इसके 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ payment. Let's start from current account of
बैलेंस ऑफ पेमेंट. Current account of balance of payment mean which item those do not change the assets and liabilities of the government. It is that account which do not change assets and liabilities of the government. कौन कौन सी आइटम आएगी इसके अंदर? विजिबल आइटम आ जाएंगी. बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स is called a balance of visible item. Invisible item, balance of export and import of service is called a balance of invisible, like shipping, insurance, banking, etc. Unilateral item means one side transaction related to gift, donation, grant, etc. So three type of item include in current account of balance of payment: visible item, invisible item and unilateral item. Next is current account. Current read capital account of balance of payment. Capital account of balance of payment is that account which bring change the assets and liabilities of the government. यानी ऐसे ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों के हैं चेंज होती हैं. क्या आता है? प्राइवेट ट्रांजेक्शन. देयर आर ट्रांजेक्शन दैट आर अफेक्टिंग एसेट्स और लायबिलिटी बाय द इंडिविजुअल. एक फर्म ने फॉरेन को लोन दिया, ठीक है जी, तो वे रिसीव क्या करेगी? इंटरेस्ट रिसीव करेगी, एसेट्स बढ़ जाएंगे. या बाहर कंपनी ने बाहर जाके ज़मीन कोई प्रॉपर्टी बाय कर रही है, एक इंडस्ट्री बाय कर रही है इंडिविजुअल ने, तो क्या होगा? हमारे एसेट्स बढ़ेंगे, ठीक है जी. अगर लोन लेंगे, एक इंटरनल इंडिविजुअल फर्म ने किसी से लोन लिया है तो उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी. ऑफिशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय द गवर्नमेंट. इसी तरह गवर्नमेंट भी क्या अदर एजेंसी से लोन लेती है तो उसके लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं. अगर गवर्नमेंट बाहर जाके प्रॉपर्टी बाय करती है, एसेट्स बाय करती है तो उसके एसेट्स बढ़ जाते हैं. दूसरा इसके अंदर क्या आता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि बाहर की एमएनसी कंपनी जब इंडिया के अंदर आके सेटअप करती है तो विद ओनरशिप आती है. मींस वो अपने डिसीजन खुद लेती है, गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करती है. तो अगर वो विद ओनरशिप आती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट इज़ दैट एक्ट ऑफ परचेजिंग एन एसेट्स एंड सेम टाइम एक्वायरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इट्स परचेज ऑफ ए हाउस बाय इंडिविजुअल इन दी बोर्ड. इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ये जरूरत नहीं, सीधा लिखो कि वन फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टर मीन्स एमएनसी कंपनीज इन्वेस्ट इन इंडिया, दे टेक ऑन डिसीजन मीन्स टेक ओनरशिप. अगर वो बिना ओनरशिप के आती है तो वो क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी. तो लिखना है इट इज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स दैट डज नॉट गिव द कंट्रोल ओवर पर्टिकुलर एसेट्स लाइक परचेज ऑफ शेयर इन फॉरेन कंट्री. अगर हम सिर्फ शेयर कोई बाय करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस का ही हम क्या है? शेयर कर रहे हैं. अगर लॉस होगा कंपनी को तो हमें भी लॉस होगा जिसने शेयर कर बाय किए हैं, और अगर प्रॉफिट है तो कंपनी प्रॉफिट में है तो हमारे शेयर भी प्रॉफिट में होंगे. मीन्स दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स विद ओनरशिप. व्हेन एमएनसी कंपनी ओपन ए यूनिट इन इंडिया दे टेक ऑन डिसीजन and expansion order, production housing, all are controlled and regulated by the MNC companies, not by the government interference. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब विदाउट एनी ओनरशिप. बाहर के इन्वेस्टर ने इंडियन के रिलायंस के शेयर बाय कर लिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर बाय कर लिए हैं, तो दे कांट टेक एनी ओनरशिप. वो सिर्फ क्या है? शेयर का हिस्सा बाय कर रहे हैं. अगर एसबीआई बैंक और रिलायंस है, अगर ये प्रॉफिट में जाएंगे तो उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, अगर ये लॉस में जाएंगे तो उनके भी लॉस हो जाए. मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद ओनरशिप और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी ओनरशिप. FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. ये क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एक चीज़ और के अंदर ऐड करते हैं, लोन बोरिंग. गवर्नमेंट लोन बाय करती है, एक कंसेशन लोन बाय करती है
इसे असिस्टेंट बोरिंग बोलते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया या किसी कंट्री से ले लिया, वो उसको मार्केट रेट से कम रेट पर मिलेंगे, क्योंकि कुछ देश आपस में क्या है हेल्प करते हैं दूसरे की, तो उसे बोलते हैं असिस्टेंस लोन, असिस्टिंग बोरिंग, कंसेशनल लोन। एक होते हैं मार्केट लोन, जिसको डायरेक्ट मार्केट से लोन लिया जाता है, मार्केट रेट के अंदर ही पे करना पड़ता है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ, बोरोइंग इंटरनल और एक्सटर्नल इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज अदर आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनके अलावा कुछ अदर आइटम्स भी हैं जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट माना जाता है, जिसे हम भूल चूक अकाउंट बोल देते हैं, एररेंस और बेंसन्स। कुछ आइटम ऐसी होती है बंदरगाह के ऊपर, हबर के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर, जिसका पता नहीं चलता कहाँ से आई, किसके साथ आई, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसको क्या है एरर बेंसन अकाउंट में डाल दिया जाता है। दे मे अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैम्पलिंग एंड ड्यू टू द ऑनेस्टी। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन मीन्स when central bank of a country interfere to maintain the foreign reserve, that is called a official reserve transaction. All transactions except those in this category may be termed as a autonomous transaction. They are so called because they were entered into with some independent motive, because of balance of payment always बैलेंस। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या है, बैलेंस लाने के लिए ऑफिशियल रिजर्व का यूज़ किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, ताकि फॉरेन रिजर्व एक लिमिट से नीचे ना जाए, क्योंकि अगर एक लिमिट से नीचे जाएंगे, अगर किसी भी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व 10 डे से कम हो जाते हैं इंपोर्ट पेमेंट पे करने के लिए, तो उस देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। इन क्राइसिस को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को रोकने के लिए ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन का यूज़ किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी बाय टेलीफोनिंग। थैंक यू।